Okay, so let's start online GDB, and after that, select your language, in which language you want to do your work, Yes, right? And after that, we want to go with C++, right? And now today we will work with what? Switch case. Okay. yes, sir. So let's take a quick uh, preview of switch case. What is the use of switch case? How and why we need to use this one, right? Like Yes, sir. sometime we have multiple choice Yes, sir. and we need to select only one out of them, Yes, sir. right? So problem is that if we have multiple choice, then we to store that choice, we need to take multiple variables, right? Multiple Yes, sir. choice we have multiple choice. So for multiple choice or we have multiple options to store Yes, each and every options, we need the variables, and then we need to check that particular variable value with the help of if condition, because we have done if, so we can think about to do this particular task with if formulas, right? yes, sir. But switch do something different. Like if I just want to give the difference between if and switch, right? So Yes, sir. problem is that we need to take a program, right? We need to write a program, right? And where we will give the options to the user, like press 1 for English, right? Press Yes, sir. 2 for Hindi, press 3 for any other language, right? Yes, sir. Like this type of thing, we need to create a program where first this message will come, right? And if user will Yes, press one, then message should become. If user will press, if user will input one, then message should become what? You press or you choose English, right? yes, If yes, user will press or user will input on the runtime, user will choose like two, then message should become you choose or whatever message you want, write Hindi. yes, sir. If user will choose or input or type number three on the runtime, then message should become you choose other, right? Yes, sir. And if user will press any other button out of 1, 2, and 3, it will be press any other, then message should be come like invalid choice, right? Or something Yes, invalid choice, whatever you want, right? So we can do like if you need to do this thing with the if formula, then we can do like we need a variable in A, then we will take C out, enter a number between 1 to 3, right? sir. Then we will take C int, then we will use like A, and after that we will choose like if A equal to 1, then this should become like C out U, सर ऐसे हमें कोड लिखना होगा ना? ऐसे हमें कोड लिखना होगा exactly, right? This is the Yes, language of choice. Then we will use else if, right? Else if, yes, then we will choose like A equal to 2, then C out, sorry, you choose 2, and similar will for the third one case like else if, right? yes, sir. else if का मैं एक ही लाइन में करता हूँ else if, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ A equal to 3, then brackets, and here I will write like C out, Yes, sir. and you choose 3, right? ये यहाँ पे फिनिश हो गया, फिर मैंने यहाँ पे एल्स लिखा, राइट? हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमारे बॉटम में हमारे पास स्पेस होगा तो, राइट? एल्स, Yes, sir. और ये मैंने यहाँ पे एल्स लिया और एल्स में मैंने लिखा इनवैलिड, राइट?
यस सर। और इनवैलिडिटी किसके अंदर लिखेंगे हम, सी आउट के अंदर लिखेंगे, invalid choice, right? यस So this is the first part, means if we know the use of if formula, sorry, if condition, right? If, यस else if, like that. Now come to the second part. This one is for if or यस else सर। if, whatever, if else. And here we will go with switch case, right? यस सर। So how switch will work? What is the mechanism or what is the concept with switch condition? The concept is that if we have a variable int a, right, यस सर। right, and user will see all these menu, like all these things will come from the user when user will run the program, right? Then and whatever user will input, user can press 1, user can put 2, or user can input 3, right? Or user can press any other button, right? So यस it's सर। like that. If like if here we use switch first, right? We will take all the things like C in or C out, enter your choice, right? I am putting so यस that choice between 1 to 3. Getting? Then C in and then A and then now switch, right? यस सर। SWITCS. And in switch, Rajiv, what we will do, we will pass or we will type this variable A here. सर बट हमें दोनों में लिखना होगा। दोनों में नहीं लिखना है बेटा, लेकिन हम स्विच कंडीशन का यूज कैसे करें, इफ एल्स और स्विच में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने दोनों प्रोग्राम साइड बाय साइड बना दिए, राइट? तो हम स्विच में जब अब स्विच केस हम सीखने जा रहे हैं, स्विच कंडीशन को हम सीखने जा रहे हैं, तो हमें ये तो माइंड में रहना चाहिए कि इफ एल्स में ऐसा क्या था जो स्विच में नहीं है, स्विच में ऐसा क्या है जो इफ एल्स में नहीं था। यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लिखते थे इफ ए इक्वल टू 1, वो इफ ए इक्वल टू 1, एल्स इफ ए इक्वल टू 2, एल्स इफ ए इक्वल टू 3 और एल्स, ये सारे जो वर्क है वो जो भी यहाँ पे हम ए में ढूंढ रहे हैं, राइट, वो ए हमने सीधा पास कर दिया स्विच को, राइट? ये स्विच जो कंडीशन है उसमें ए है, और ए में या तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर एनी अदर आ सकता है, राइट? यही चॉइस आएंगी 3 में, यस सर। लेकिन आएगा तो कोई एक ही नंबर ना। यस सर। तो अब स्विच को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे स्विच की सबसे पहले बॉडी ओपन करेंगे, और स्विच का जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट वन वो है केस, ओके सर। राइट? और केस में हम क्या चेक करेंगे, केस में हम चेक करेंगे वो वैल्यू जो वैल्यू यूजर ए के अंदर टाइप कर सकता है, ओके सर। ओके? यस सर। जो वैल्यू यूजर रन टाइम पे टाइप कर सकता है, स्क्रीन पे उसने 100 टाइप किया तो हम केस में क्या चेक करेंगे, 100, राइट? तो अभी यूजर क्या टाइप करेगा, केस में क्या क्या इनपुट क्या कर सकता है, या तो 1 या तो 2 और या तो 3। सर मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं फिर देखते हैं इसको, ठीक है? मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आता हूं और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूं, डोंट वेरी, एक वेरिएबल ले सकते हैं इंट ए, राइट? और यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहाँ पे एक मैसेज देना है सी आउट, और आपका मेन्यू क्या रहेगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाना है, प्रेस 1 4 इंग्लिश, राइट, स्लैश एन, प्रेस 2 4 हिंदी। इस हिंदी इंग्लिश का क्या मतलब है, तब तक मुझे बताइए थोड़ा सा। सर आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए? हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मैसेज, तो मैं मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूं कि ये 3 मैसेज आने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेज, राइट? वेरी गुड। तो अगर मैं इतने प्रोग्राम को सेव करके और इसको रन करूं, राइट,
तो मेरे सामने सिर्फ क्या आएगा मेरे आउटपुट में? सर प्रेस 1, यस मेरे आउटपुट में आएगा प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, मैसेज प्रेस 2 फॉर हिंदी, प्रेस 3 फॉर अदर लैंग्वेज। अदर। अब मैं अगर इस इन आउटपुट को अपनी स्क्रीन पे देखूंगा तो मैं या तो 1 प्रेस करने की कोशिश करूंगा, या 2 प्रेस करने की, या फिर 3 प्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी मैं प्रेस करूंगा उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले फंक्शनलिटी देनी होगी, सी इन। और सी इन मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है? ए। अब मैं कह सकता हूं कि यूजर जब इस मैसेज को स्क्रीन पे देखेगा तो या तो वो 1 प्रेस करने की कोशिश करेगा, या वो 2, या फिर वो क्या प्रेस करेगा? 3, या फिर इनके अलावा वो कोई और भी नंबर प्रेस कर सकता है। ओके, चलिए यहाँ पे हम आए और अब हमने लिखा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यूजर 1, 2, 3 या कोई अदर नंबर, कोई भी एक ही नंबर टाइप कर पाएगा एक बार में, यस और वो नंबर किसके अंदर स्टोर होगा? सर, ए वेरिएबल। ए के अंदर होगा। वेरी गुड। डिफरेंट डिफरेंट हमने वहां पे दिए वेरिएबल, लेकिन वो स्टोर होंगे ए के अंदर, और एक ही वेरिएबल, एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो ए के अंदर आएगी, तो स्विच के अंदर हम किसको पास कर देते हैं? ए को पास कर देते हैं इस तरीके से, राइट। स्विच के अंदर हमने किसको दे दिया? वो वेरिएबल दे दिया उसके पैरामीटर के अंदर, जिस वेरिएबल में स्विच को ये चेक करना है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 है, या वैल्यू 2 है, या वैल्यू 3 है, या कोई अदर वैल्यू है। सर हैशटैग बना के ना सर स्विच का लिख दो, यूज क्या है स्विच का। हैशटैग बना के? स्विच का यूज लिख दीजिए। नहीं समझ में आया, बोलिए, दोबारा से बोलिए। सर वो जो 3 के ऊपर नहीं होता हैशटैग कमा उसको, ताकि वो प्रिंट में ना आए, उसको करके आप एक मतलब ये बना दीजिए कि स्विच का फंक्शन क्या है। अच्छा, स्विच की फंक्शनैलिटी। हाँ सर। चलिए मैं इसे कंप्लीट करता हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो नहीं यहाँ सर वो जो 3 नहीं नंबर होता कीबोर्ड पे। हाँ होता है, हैश की बात हाँ करते सर, हैं। उसको शिफ्ट दबा के ऊपर वो हैशटैग आ जाता है, तो फिर वो कमांड में इंक्लूड नहीं होगा, तो उसको नोट बना सकते अच्छा ठीक है, उसको मैं बना देता हूँ, पहले मैं रन करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। हैं। तो मैंने केस 1 लिया यहाँ पे, और केस 1 में मैंने लिखा सी आउट, और सर ये मैंने सबके लिए हमें ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। हाँ जैसे इफ एल्स में तो एक ही बार खोलना था। बिल्कुल, यहाँ पे जो इफ का काम हो रहा है वो यहाँ पे किसका, उस तरह से वर्क यहाँ पे कौन कर पा रहा है? केस वर्क कर रहा है, राइट। जैसा वर्क वहां पे इफ एल्स करता है उस तरह का वर्क यहाँ पे कौन करेगा? केस करेगा। सी ए एस ई, केस। कितने केस हमें बनाने, कितनी कंडीशंस हमने दी है? यूजर या तो 1 प्रेस कर सकता है, या 2 प्रेस कर सकता है, या फिर 3 प्रेस कर सकता है। तो हमने 1, 2 और 3 के लिए हमने उसको केस दे दिया, और उसके अलावा अगर यूजर कुछ भी टाइप करता है तो उसके लिए यहाँ पे जो फंक्शनलिटी है वो है डिफॉल्ट। ओके सर। इनवैलिड, ये लीजिए। ओके, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है यहाँ पे कि जो आपका वेरिएबल है, जो आपका प्रोग्राम है, उसमें यूजर को एक मैसेज मिलेगा, उसको या तो 1 या तो 2 या तो 3 प्रेस करना है। जो भी 1, 2 या 3 प्रेस करेगा वो ए वेरिएबल में आपने स्टोर किया, उस वेरिएबल को आप स्विच को दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। और फिर स्विच चेक करेगा कि अगर ए के अंदर 1 है, ए के अंदर अगर ये वाली कंडीशन है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। ओके, अगर ए वेरिएबल के अंदर क्या है? 2 है, ये तो 2 फिर है, दूसरा तो फिर वाला ये ब्लॉक। वाला नहीं होगा, सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर उस ए के अंदर अगर आपको क्या मिला? 3 मिला, उस ए के अंदर अगर 3 मिला तो फिर आपका थर्ड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर उस ए के अंदर, इस ए वेरिएबल के अंदर 1, 2 और 3 के अलावा अगर अदर कुछ भी मिला तो कौन सा वाला कॉल होगा फिर नीचे? डिफॉल्ट वाला, जो डिफॉल्ट में आपने लिखी है। ओके, ये इसकी फंक्शनैलिटी है।
तो इस तरह से ये वर्क करता है। वहां पे हम कैसे करते थे, हम करते थे इफ एल्स इफ एल्स, राइट। लेकिन ये और फिर यहाँ पे, लास्ट में एल्स। हाँ जी, और लास्ट में एल्स, तो एल्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, डिफॉल्ट यहाँ डिफॉल्ट। पे एल्स का वर्क कर पा रहा है। नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम and it is asking or it is displaying the message, press 1, 2 or 3. If I will go with other like 4, 5 or 6, any other number, then it is giving me invalid. That means what will happen in the programming language, user just user just type a number like 5. नॉट मेंशन्ड इन तो द वो मेन्यू। 5 यूजर ने जो टाइप किया वो ए के अंदर 5 गया। अब इसने स्विच ने चेक किया कि मेरे पास जो केस है, मेरे पास केस की जो वैल्यू है यहाँ पे भी 5 नहीं है, इस केस की वैल्यू भी 5 नहीं है, नीचे वाले केस की वैल्यू भी 5 नहीं है जहां पे 3 लिखा हुआ है, राइट। तो उसने हमें कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इनवैलिड में, यानी कि डिफॉल्ट में उसने हमें भेज दिया। बट सर अगर नंबर होता जैसे कि 1 तो वो सिर्फ 1 वाला ब्लॉक चलाता। हाँ देखिए, इस 1, 2 और 3 से ये मतलब आप नहीं समझना कि ये कोई सीक्वेंस है, राइट। यस। केस के अंदर हम वही टाइप करते हैं जो हमें चेक कराना है। अगर हम इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं, मैं लिखता हूं प्रेस 1014 फॉर इंग्लिश, 2014 हिंदी एंड 3014 एनी अदर। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या चेक कराना पड़ेगा केस में, ये सर पहले वाले में 101 है। वेरी गुड। तो केस 101 के नाम से बनेगा, केस 201 के नाम से बनेगा और केस 301 के नाम से बनेगा। और उसके अलावा अगर यूजर कुछ भी टाइप करता है तो वो कहाँ चला जाएगा, आपका इनवैलिड चॉइस में चला जाएगा। यस। ओके, तो अगर ये बेसिक हमें समझ में आ गया हो राजी, तो फिर हम यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो केस 101 का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम बस इतना सीमित ना रह जाए कि हम सिर्फ एक मैसेज ही दे सकते हैं। नो, हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन उस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। हमने अभी तक इफ कंडीशन का यूज किया, तो हम केस 101 के अंदर इफ कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए, राइट। आई थिंक वो हम करेंगे, एक बार हम बेसिक से निकले तब हम उस तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली जो स्विच केस है, स्विच केस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर ना कराए, एक ही वेरिएबल आप लें और उस वेरिएबल में यूजर को बहुत सारी चॉइसेस दें और उस चॉइस में यूजर सिर्फ एक ही चॉइस को टाइप कर पाए, एक ही चॉइस को सेलेक्ट कर पाए। और अगर वो चॉइस, आपने जितनी चॉइस उसको दी थी वो सिलेक्शन उन्हीं चॉइस में है, तो वो पर्टिकुलर केस अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज वो कहाँ चला जाए, डिफॉल्ट में ही चला जाए। यस सर। ओके सर। यस सर। अब अगर हम इसको रन करते हैं, आगे से रन करते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि इसमें सर वो प्रॉब्लम। अंडू कर दो सर, वो 101 हटा के 123 कर दो। ओके, मैं कर देता हूँ, एक बार इसको रन कर लें। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 301 प्रेस करता हूँ, राइट, तो यस। यहाँ पे क्या क्या आया आपके पास आउटपुट में, यू प्रेस इन वाले। और यू प्रेस 3 एंड इनवैलिड, राइट। पहले मैं इसे अंडू कर देता हूँ और उसके बाद, बट सर ये इनवैलिड क्यों आया, 301 तो है। हाँ अब हम उसकी प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं, राइट। यस तो उसकी प्रॉब्लम ये है राजीव सर, कि अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट होता है, राइट, अगर सपोज करो आपने 1 ही प्रेस किया और आपने चूज किया 1, तो पहले तो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा आपको /n देना चाहूंगा ताकि आपको ये क्लियरली क्या हो, दिखाई दे, समझ में आए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। /n /n for line change /n, और here I also want, I not require because last वाला वर्क करेगा। यस तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारी चॉइस आ गई। मेरे पास यस प्रेस 1 तो आया ही, उसके बाद क्या आया, प्रेस 2, प्रेस 3 और इनवैलिड, राइट।
ये जो प्रॉब्लम है इसको आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूं, राइट, और इस बार अगर मैं 1 की जगह 2 प्रेस करूं तो आप देखना कि जब मैंने 1 प्रेस किया था तो क्या आउटपुट आ रहा था, और अगर अब मैंने 2 प्रेस किया है तो क्या आउटपुट आ रहा है। यस सर। अगर मैं 2 की जगह 3 करूं, राइट, 2 की जगह अगर मैं यस 3 सेलेक्ट करूं तो अब क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास। अगर मैं यू 3 प्रेस अगर मैं 3 की जगह मैं अगर कोई अदर नंबर लूं तो फिर मेरे पास क्या, सर इनवैलिड। इनवैलिड। इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, कि अगर सर फर्स्ट वाला केस एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट, तो फिर यस। बाकी वाले केस के अंदर भी हमने जो मैसेज दे रखा है वो मैसेज आ रहा है। ओके सर। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 प्रेस करते हैं तो 2 मैसेज तो आ रहा है, प्रेस 2, लेकिन 3 भी आ रहा है और इनवैलिड भी आ रहा है, राइट। अगर हम ना तो 1 प्रेस करें, ना 2 करें, ना 3 करें, उसके अलावा अगर कोई भी मैसेज हम, सॉरी सॉरी, कोई भी नंबर अगर हम टाइप करते हैं, देन इट इज डिस्प्लेइंग अस ओनली इनवैलिड, right? Now you can say that, sir, if there is the problem, and problem is that if any case is executing, then other will also printing, right? क्योंकि इसका कुछ मैकेनिज्म ऐसा है सर कि अगर फर्स्ट केस आपका एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले को एज ए मैसेज ही समझता है, राइट, फिर वो उसके लिए ब्लॉक नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें एक स्पेशल कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड द कीवर्ड नेम इज व्हाट, ब्रेक। Okay, and what will this break word will do? This break keyword will terminate the condition. Okay, now if we will press the one, then it will give the message, and after that, when compiler will comes on break, then that means program will totally what, terminated. तो Okay, सर मतलब इसमें मतलब जो हम जैसे रन करते हैं ऑप्शंस दिखा दिया, 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर हिंदी, 3 फॉर अदर लैंग्वेज, और सर हमने 1 मतलब डाला, हमने 1 प्रेस किया तो सिर्फ वो इतना ही बोलेगा यू प्रेस 1 और कमांड खत्म। that's it. Right? ओके। Means switch have case, and case have a problem. If the condition is satisfied, the condition is working, or the condition is true, then other condition or below conditions or below case will not stop. Okay, they will also print it. Their data will also print it. Okay, their message will also print it. Okay, so to do that, what we need to do? Every particular case, right? Every particular case, what we need to do? We need to put break there. Okay. ओके सर। Should we also type break in default? नो सर। Good. Because in default, after default, nothing is there. कुछ भी नहीं है तो वो print क्या करेगा? फिर हमें उसे, अगर हम break लगाएंगे, we can do that. There will no error. But logic is not, correct. Right? यस सर। So now if we will run this one, then we can say that, okay, now if I will press like 1, so it will give only the 1. यस Okay, sir. So this is the way of working. So now you can do this one. You सर। can, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, आप यहाँ पे लिख सकते हो? what we need to write here? सर जस्ट, Sorry, सर जस्ट मिनट। we can write here, we can use here cout functions, or we can, start any other functionality or any other concept without any problem. Okay, but switch case is ended here. यस सर। Okay, means in line number 40 or 41, whatever we will write here, that will not controlled by switch condition. यस सर। नहीं सर, सर मैं कह रहा था कि आप ऐसे, आपको मेरी, एक मिनट एक मिनट, आपको ये Okay, दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ? comment. मुझे स्लैश टाइप के कुछ दिखाई दे रहा है राजीव। हाँ सर, एक मिनट। Okay, I can do the comment if you want comment.
सर ऐसे हैशटैग बना के। समझ गया मैं, हैशटैग बना के मैं कमेंट हाँ कमेंट सर, सर ऐसे ही हैशटैग बना के सर आप प्लीज मेरे को ये डेफिनेशंस लिख सकते हो, केस की, ब्रेक की, डिफॉल्ट। ओके, आई एम डूइंग हियर वी आर टेकिंग user value, right? In यस, variable A, right? यस सर, This is switch. Okay, ये ठीक है. Okay, slash ही है, ठीक है. So this is switch, and in this we will check the value of variable, right? यस सर, And case one, if value of variable A is 1, then this case will execute. यस सर, Right? You want like that? यस सर, To terminate this program if case 1 will execute. Right? यस सर, And here I want just copy and paste for here, here, and here. Okay. यस, If user will press anything else out of choice, then this default block वर्क, will work or display their message or एज इनवैलिड। logic. Right? And here, if value of variable, what is 3, then this one will work, then this one will work. Okay, sir? सर टू, यस Sorry? सर, ये पे कर दो। नहीं सर, तो सर केस का क्या मतलब होता है सर? केस का मतलब होता है राजीव कि जो वेरिएबल में हमने वैल्यूज इनपुट कराई है उसमें जो भी वैल्यू यूजर इनपुट कर सकता है, राइट? जो जो हमने चॉइस दी है उन्हीं चॉइस में से कोई भी एक नंबर इनपुट कर सकता है यूजर. तो यूजर जो भी मैसेज इनपुट करेगा उन मैसेज के लिए हमें केस बनाना पड़ेगा. जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू जिस भी केस में हमने डिक्लेयर की होगी सिर्फ और सिर्फ वो ही केस एग्जीक्यूट होगा. ओके सर, Okay, like if we want to give, suppose you can put like lots of things are there, real types of examples you can take like customer care helpline. सर तो अभी आपको ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ सर? मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लाइन टाइप का कुछ. तो सर केस मतलब चॉइस हुआ ना? यस, केस हाँ मतलब सर, चॉइस, वॉट एवर वी विल पुट इन द चॉइस, सो चॉइस को हम चेक करा रहे हैं केस के थ्रू. ओके सर, ओके, लाइक कभी भी हम कंप्लेंट करते हैं, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो हमें वही टोल फ्री मिलाने के बाद वो हमें गाइड करता है, राइट? मीन्स वो हमें इतने 10 to 15 चॉइस देता है आपको क्या करना है बैंकिंग सर्विस के लिए, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लोन, कार लोन, इतने सारे ऑप्शन. लेकिन आफ्टर लिसन ऑल दीज ऑप्शंस वी कैन पुट ओनली वन थिंग, राइट? सो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स like work with case. यस सर, Okay, so Yes, sir. this is the use of case, ओके, right? So now you need to practice with this one. Okay, you will share your screen. I am sending you this message or link or the code, and then you will practice. Okay, यस, and